Good morning, dear students. Today we start exercise 2.3 remainder theorem. Okay, let us understand by basics. Okay, basics इसको समझते हैं remainder theorem का remainder मतलब कि divide करना, divide में जो remainder बचते हैं उसी के थ्रू ही इसको समझते हैं. Okay, let us consider two number 15 and 6. When we divide 15 by 6, 6 to the 12, we get remainder here 3. Okay, we can also write 15 equal to 6 into 2 plus 3. See, 6 to the 12 plus 3, 15. 15 आ गया. Is it okay? Now we are going to write what is a 15, what is 6, what is 2, what we can say here. Okay, 15 we can say dividend. 15 is a dividend, equal to 6 is a divisor, into 2 is a quotient, plus 3 is a remainder. It is very long. Next I will write in short form. Okay, DQR. Is it okay? Now let us consider another example, 27 and 3. Okay, when we divide 27 by 3, 3 9 the 27, we get remainder 0. Okay, हमको यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला? 0 मिला. यहाँ पर क्या रिमाइंडर मिला था? 3. We can write 27 equal to 3 into 9 plus 0. Okay, in short form 3 is a divisor, into 9 is a quotient, plus 0 is a remainder. Is it clear? Now here we can say that 0 is the remainder. Sorry, 0 is the remainder. So 3 and 9 is a factor of 27. 3 is a multiple of 27 is a 3 and 9 also, है ना. 3 9 क्या उसके फैक्टर है, उसके क्या है, मल्टीपल भी है. Is it clear? Now इसको question is that can we divide polynomials one polynomial by another polynomial? Let us see. Okay, see the example, 3x square plus 2x by x. Okay, in normally we can divide like this, 3x square divide x plus 2x divide x. ऐसा नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा. ओके, व्हाट वी गेट 3x plus 2, है ना. 3x plus 2 we got. Okay, in a long division method we can divide also. This is also requirement, है ना. ये भी जानना चाहिए तुमको, because in the next time maybe next exercise we have to do. Okay, see फर्स्ट टर्म्स क्या है, 3x स्क्वायर है ना. हमारे पास डिवीजर के x है, x का ऐसा टेबल पढ़ना जो 3x स्क्वायर आ जाए. x का रेडियल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर है ना. कट जाएगा ये. अब क्या बच गया नीचे 2x. ओके, x साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 2x 0. ओके, सी रिमाइंडर 0. वी कैन एक्सप्रेस 3x square plus 2x equal to x into 3x plus 2 plus 0 as that form. Okay, this is a dividend, this is a divisor, into this is a quotient plus remainder. See, remainder is a 0 है. ऐसा लिख सकते हैं. Means we can say that here x and 3x plus 2 is a factor of 3x square plus 2x. हो सकते हैं. Means x equal to 0 we can put also, no problem. And 3x plus 2 equal to 0 means x equal to minus 2 by 3 also we can write. Understood? है ना, ऐसा हो सकता है. ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो ऐसे 0 आएगा. Is it clear? है ना. Now let us see another example. एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या आता है. Here we get remainder 0, है ना. square minus 2x plus 1 divided by x minus 1, है ना. First let us divide by long division method, then we can understand why we are using remainder theorem. क्यों remainder theorem यूज करना है ये देखते हैं. ठीक है, अब remainder theorem अगर विदाउट remainder theorem करें, long division method करें तो remainder तो आ जाएगा. Is it clear? बट हमको शॉर्टकट में समझने के लिए, शॉर्टेस्ट मेथड के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है. ओके,
सी x माइनस 1 डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये डिवाइड करके आना बहुत जरूरी है। अभी तक क्लास 9 पढ़ी अगर नहीं है तो एक बार अच्छे से समझ लो। ओके, वी हैव टू सी फर्स्ट टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म्स ऑफ डिवीजन। दोनों को फर्स्ट टर्म्स देखना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 3x स्क्वायर, उसका फर्स्ट टर्म्स क्या है x, इसको डिवाइड करो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x से बचेगा। ठीक है, मींस जो भी आ रहा है उसको उसके डिवीजन से मल्टीप्लाई करोगे। x माइनस 1 इंटू 3x, 3x स्क्वायर माइनस 3x, व्हाट वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 3x। ऑलवेज वी विल गेट फर्स्ट टर्म बाय मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा फर्स्ट टर्म हमको मिलेगा ही मिलेगा। इज इट क्लियर? व्हाट इज क्वेश्चन हियर? 3x से मल्टीप्लाई किया था हमने, क्या आ गया था 3x स्क्वायर माइनस 3x आया था। ओके, नाउ द साइन विल बी अपोजिट, here plus is to minus is to plus, this is cancel, always first term cancel हो जाएगा। ठीक है, plus 3x minus 2x means only x। okay, one terms we have to denote। okay, x plus 1 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट टर्म देखो, now we can treat as a dividend, x plus 1 को हम डिविडेंड ट्रीट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसका फर्स्ट टर्म क्या है x है, हमारा डिवीजन का फर्स्ट टर्म क्या है x है, मींस 1 आया। तो अब किससे डिवाइड करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 3x। ओके, नाउ साइन विल बी अपोजिट, अंडरस्टूड, कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पर 2, सी हियर रिमाइंडर इज 2, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। अब इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, may I write also 3x square minus 2x plus 1 equal to क्या होता है फार्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन x minus 1 into कोसेंट 3x plus 1 plus रिमाइंडर मीन्स 2, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज सपोज अ px इक्वल टू दिस इज अ डिवीजन, दिस इज अ quotient, this is the remainder. See, okay, let us see what we get, px equal to x minus 1 into 3x plus 1 plus 2। now let us put x equal to 1 है ना, x minus 1 है तो इसमें क्या करते हैं put x equal to 1। why we are putting? because 1 is a magical number। How it is magical we will see, let us soon। okay, पहले देखते हैं, इसके बाद हमको समझ आ जाएगा क्यों ऐसा पुट किया। because we are understanding now remainder theorem, अब समझ रहे remainder theorem होती क्या है। ठीक है, now let us put p of 1, this was p of x ना, instead of x we will put 1 minus 1 plus 3 into 1 plus 1 plus 2। okay, now p of 1 equal to 0, sorry this is multiply, 3 plus 1 plus 2, p of 1 equal to 0 is 0 plus 2, p of 1 equal to 2। see, this is why therefore this is a magical number। okay, when we put dividend equal to zeros है ना, डिविडेंड का जो भी रहता है उसको हम पुट करते हैं तो हमको रिमाइंडर मिल जाती है। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी किए तो भी हमको 2 मिला और इस मेथड में भी किए तो को 2 मिला है ना, बिकॉज दिस वाज अ फैक्टर ना x minus 1 है ना, इसके इक्वल टू जीरोस पुट करो, x इक्वल टू 1 फिर पुट करो तो आ जाएगा आंसर। एंड वन मोर वे ऑप्शन ये भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 3x plus 1 equal to 0 means x equal to minus 1 by 3, ये भी पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा है ना। बस इन द क्वेश्चन वी विल गेट डिविडेंड हम सॉरी डिवीजन हमको मिल जाता है, क्वेश्चन में डिवीजन मिल जाता है ना, तो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन जनरलाइज रिमाइंडर थ्योरम है ना। अब रिमाइंडर थ्योरम को जनरलाइज कैसे करते हैं, जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, लेट अस रिमाइंडर थ्योरम सपोज अ पॉलिनोमियल इज अ px, इज इट क्लियर, देयर divisor is a x minus a
quotient is a qx and remainder is a r. Understood? Is it clear? See, now we can put x equal to a. Okay, p of a equal to a minus a qa plus r. Now a minus a is a 0 into qa plus r. This entire process is 0 because multiplies by 0. 0 plus r equal to r. Understood? This is a remainder theorem, है ना? जो भी हमारा डिविडेंड रहता है उसका जीरोस निकालते हैं, फिर हम उसको उसके थ्रू रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3. According to that we will understand. Okay, see, I have written question exercise 2.3. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. Okay, I have taken from the exercise. Is it clear? Now let p of x equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Okay, we have to find remainder, है ना? Remainder. There is no return by remainder theorem. Remainder theorem से निकाला है, लिखा नहीं है ना? तो इसको अगर आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, है ना? ऐसा वाला x plus 1 इस मेथड से भी कर सकते हो. ओके, इस मेथड से करोगे फिर इसको डिवाइड करके x से करोगे. दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, है ना? एक क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है बेटा. दैट्स व्हाई वी हैव अंडरस्टैंड रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू विद एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर इसको अभी करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके फर्स्ट टर्म देखना पड़ेगा, x क्यूब है ना? इसके डिवीजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो क्या होगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस x प्लस 1 x स्क्वायर से करोगे तो क्या होगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर है, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो हम लोग x स्क्वायर से किया तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर. नाउ वी कैन डू, कैंसिल हो गया है ना? 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा. फिर इसको 3x को नीचे डिनोट किए, ऐसा करते करते दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ओके, देयरफॉर वी हैव अंडरस्टैंड रिमाइंडर थ्योरम. सो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? आई हैव एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली. जो ये होते हैं हमारे रिमाइंडर थ्योरम, है ना? x माइनस a इंटू qx प्लस r होती है ना? p ऑफ x इक्वल टू ऐसा होती है ना? सो p ऑफ a निकालना पड़ता है हमको. p ऑफ a वो यहाँ से निकलता है, इसका जीरोस निकालते हैं, ठीक है? सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, ओके, व्हाट विल बी ऑफ a? p ऑफ a क्या होगा, है ना? ग्राफ में इसको देखना है ना? x plus 1 equal to 0 means x equal to minus 1. So p of a is a minus 1. Understood? Clear है? Means instead of x we will put minus 1. See, x cube means minus 1 cube plus 3. X square means minus 1 square plus 3 minus 1 plus 1. Now open the bracket. माइनस 3 टाइम्स है ना? क्यूब है इसका तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, है ना? ये स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 1. सी, माइनस प्लस कैंसिल, वी गेट रिमाइंडर हियर 0. इज इट क्लियर? दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम. Hence here remainder is a 0. Hence here remainder is a 0. Remainder is a 0. Understood? Now let us take one more question. Okay, question number 2. What is question number 2? Find the remainder when x cube minus x square
plus 6x minus a is divided by x minus a. See solution by remainder theorem. Okay, let px equal to x cube minus x square plus 6x minus a by remainder theorem. What will be p of a? p of a क्या होगा? This is a dividend है ना, divisor. x minus a equal to 0, so x equal to a. So p of a will be, sorry, p of x will be a. Okay. Instead of a cube plus a square plus c, a cube minus a cube plus 6a minus a. This is cancel. 6a minus a equal to 5a. Okay. So hence the remainder is a 5a. Understood? Is it clear? Now you have to complete exercise 2.3. Okay. In the next video we will discuss exercise 2.4. Okay. उसमें क्या है? फैक्टर थ्योरम. मीन्स इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है? जो भी हमारा डिवीजर होता है उसका जीरोस निकालते हैं. जो भी हमारा डिवीजर्स होता है उसका जीरोस निकालते हैं, फिर डायरेक्ट उसको पुट करते हैं p ऑफ x में. सो p ऑफ a मिलेगा. सो दैट विल बी द रिमाइंडर थ्योरम. इज इट क्लियर? जो भी हमारा डिविडेंड रहता है, नीचे में जो भी पार्ट होता है या जिससे भी डिवाइड करना था उसका जीरोस निकालना है, उसको p ऑफ x में पुट कर देना है. देन वी विल गेट आंसर. इज इट क्लियर? Okay, thank you so much.